Good afternoon, students. We are back with a new video on circles. In our previous video, we just learned about the basics of circles, what is a circle and what are the theorems we are going to use in this chapter. And in this video, I am going to discuss various NCERT questions with you. So we have one exercise in this chapter. So I'll be taking only important questions, right? So question number 8. Question number 8 of the exercise 10.1. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. We have a circle and quadrilateral ABCD see, this is the quadrilateral ABCD circumscribes the circle. ये quadrilateral ABCD इस circle को circumscribe कर रहा है. What you have to prove in this? Prove that AB plus CD equals AD plus BC. यानी कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में हमें ये प्रूव करना है कि इन दो साइड्स का सम, ऑपोजिट साइड्स का सम इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू ऑपोजिट साइड्स. ठीक है. सो विल बी प्रोसीडिंग विद इट. लेट दिस पॉइंट बी P, Q, R and S. Can I say that this AP, देखो मैं इसे हाईलाइट कर रही हूँ, this AP is equals to AS. अगर मैं इसे as quadrilateral view ना करूँ, A को मैं external point consider करूँ, तो can I just say that AP equals AS? Why? Because tangents drawn from external point of a circle, external point to the circle are equal. अब ये जो हम लोग tangents draw कर रहे हैं एक external point से, वो tangents क्या होंगी? Equal होंगी, right? So AP equals AS. AP और AS क्या हो गए? Equal. What will be the region? Tangents drawn from external point to a circle are equal. Right? अभी देखो ये AP और AS equal हो गए. अगर मैं इस PB को देखूं, this PB equals BQ, PB equals BQ. रीजन फिर से यही का यही रहेगा. ठीक है. अभी मैं इसकी ऑपोजिट साइड ले रही हूँ. दिस DR equals DS and similarly RC equals CQ. यही का यही रीजन रहेगा. Tangents drawn from external point to the circle are equal. Adding all the equations, adding above equations, तो क्या हो जाएगा? AP plus PB plus DR plus RC equals AS plus BQ plus DS plus CQ. यही हो जाएगा. Now AP plus PB, check out in the figure. AP plus PB is AB. DR plus CR, DR plus CR कितना हो गया? DC. This is equals to AS plus DS. AS और DS मिलकर के क्या बना रहा है? AS and DS equals AD. And BQ plus CQ. BQ और CQ की अगर मैं बात करूं, BQ plus CQ is BC. And this is what we had to prove. यही कंडीशन हमें प्रूव करनी है. Quadrilateral हमें given है ABCD. In this question we are given a quadrilateral ABCD and what we have to prove that sum of opposite sides is equals to sum of other two opposite sides. ठीक है. तो मैंने क्या किया? एक प्रॉपर्टी उसकी tangents drawn from external point to a circle are equal. तो यहाँ से हम लोगों ने इसे ऐड किया. We had the proof of the above question. इसी से कनेक्टेड आपकी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11. I am going to take it with this question only. Question number 11.
गिवन है, क्या गिवन है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम, यानी कि ABCD क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अब ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन दैट क्वेश्चन। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी कि मुझे प्रूव करना है ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है? रोम्बस है। अगर ABCD, what it is given that ABCD is a parallelogram, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यस, तो क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स CD एंड BC इक्वल्स AD, राइट? ये हो जाएगा बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। अब गिवन क्या है? कि गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, बट प्रूफ क्या करना है कि ये रोम्बस है। अब देखो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? ऑपोजिट साइड्स तो दोनों की पैरेलल होती है, राइट? बट पैरेललोग्राम में अगर हम इक्वल बात करें तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन अ रोम्बस ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हमें इस क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे, इतना पार्ट उसका यही है। अब हमें इसमें क्या प्रूफ करना है? दीज फोर साइड्स आर इक्वल एंड वी आर गिवन दैट दीज टू ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्योंकि वो क्या है? पैरेललोग्राम है, राइट? अभी देखो, कैन आई राइट दिस इम्प्लाइज AB, DC को मैं AB लिख सकती हूँ बिकॉज AB इक्वल्स DC, दिस इज इक्वल्स AD प्लस AD, तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पर रीजन लिख देंगे बिकॉज AB इक्वल्स CD and AD equals BC, राइट? यही रीजन आ जाएगा। तो ट्वाइस AB equals ट्वाइस AD, दिस implies AB equals AD, AB और AD क्या हो जाएंगे? यहाँ से इक्वल हो जाएंगे। नाउ AB equals AD and AB equals CD, बट AB और CD इक्वल है, राइट? AD और BC इक्वल है एंड AD इक्वल्स BC, दिस इंप्लाइज ये चारों की चारों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। AB इक्वल्स BC इक्वल्स CD इक्वल्स DA, दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। आई होप ये इजी है, आप लोगों को क्लियर है। इसे रोम्बस प्रूव करना है, इट मींस हमें क्या प्रूव करना है? कि इसकी सभी की सभी साइड्स क्या है? इक्वल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन था अगर वो क्वाड्रिलेटरल है तो ये प्रूव करो सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल। क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड फिगर है, यानी कि हर एक फोर साइडेड फिगर जिसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब हो जाए उसकी ऑपोजिट साइड्स का सम विल बी इक्वल टू ईच अदर, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो पैरेललोग्राम है, यानी कि अगर ये गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है तो ये कौन सा पैरेललोग्राम होगा? इट विल बी अ रोम्बस, यानी कि इसकी ऑल साइड्स विल बी इक्वल। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दिस चैप्टर इज वेरी इजी टू स्कोर चैप्टर। See my next question, question number 9. Again, an important question, question number 9. इस 9th question में first of all I'll make the figure. So in question number 9 में हम लोगों को क्या गिवन है? We are given this figure और इसमें mentioned है that x²
आर पैरेलल टू पैरेलल टेंजेंट्स. सबसे पहली कंडीशन क्या गिवन है, दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश with center O and another tangent AB. AB एक और tangent है with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash as B. Prove that. What you have to prove? Prove that angle AOB is 90 degree. हमें अब इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है कि ये जो AOB एंगल है वो एंगल क्या है 90 डिग्री, यानी कि मुझे इस एंगल को प्रूव करना है 90 डिग्री, राइट. तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन OC. We will make a construction here, join OC. OC को ज्वाइन किया. Now what I am going to do, मुझे इन दो ट्राइंगल्स को लेकर के इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है. अभी वो पता लगेगा क्यों करना है. इन ट्राइंगल POY एंड ट्राइंगल POA, this point is A. I'm sorry. This point is A. In triangle POA and triangle AOC. First condition जो मुझे given है, ये जो PA है और AC है इक्वल होगा. PA equals AC by tangents from an external point. Tangents drawn from external point to circle are equal. तो मैं अभी यहाँ पर ब्रीफ में लिख रही हूँ tangents from external point. I hope ये क्लियर हो रहा है आपको. Tangents drawn from external point to a circle are equal. जो भी external point से tangents draw की जाएगी वो equal होगी. Now my second condition will be OA equals OA. OA और OA कॉमन साइड है इन दो ट्राइंगल्स में, तो ये इक्वल हो जाएगी. थर्ड कंडीशन PO इक्वल्स OC. PO और OC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. एंड व्हाट विल बी द रीजन है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, है ना. दिस इंप्लाइज बाय SSS congruency triangle POA is congruent to triangle AOC. क्लियर हुआ ये. अभी अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कैन आई से बाय CPCT क्या प्रूव करना है हमें. देखो हमें ये वाले एंगल को 90 प्रूव करना है. बेसिकली व्हाट आई हैव टू डू, मुझे ये एंगल और ये एंगल फाइंड करना है, राइट. तो मैं CPCT से क्या कहूंगी, दैट दिस एंगल 1 एंड दिस एंगल 2 आर इक्वल. कह सकती हूँ मैं ये. दिस implies angle 1 equals to angle 2 by CPCT. ठीक है. सिमिलरली इस एंगल 3 बोल देते हैं और ये एंगल 4 हो जाएगा. सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स एंगल 4. आई होप यहाँ तक समझ आया. अब देखो मैंने इन दो ट्राइंगल्स को लिया, कॉन्ग्रुएंट किया, तो CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, राइट. उसके बाद सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा. आई होप ये क्लियर है. अभी देखो बेटा यहाँ पर कैन आई से नाउ 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स 180. एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दिस इक्वल्स 180 डिग्री. क्या हो जाएगा, कोइंटीरियर एंगल्स. अब क्योंकि ये एंगल्स इक्वल है, अब क्योंकि एंगल 1 और 2 इक्वल है तो मैं इसे ट्वाइस एंगल 2 बोल सकती हूँ. एंगल 2 + 2 और ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल 3. तो ट्वाइस एंगल 3 दिस विल बी 180 और यहाँ से एंगल 2 + एंगल 3 विल बी 180 बाय 2, राइट. तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना आ गया, 90 डिग्री. तो यहाँ से हमारे पास एंगल 2 + एंगल 3 विल बी 90 डिग्री. आई होप ये क्लियर हो गया. तो 2 + 3 का सम कितना आ गया, 90 डिग्री. अब जो मुझे ये एंगल फाइंड करना है इसे मैं x बोल देती हूँ, यानी कि आई हैव टू फाइंड दिस एंगल x. तो नाउ इन ट्राइंगल AOB, अब इस AOB ट्राइंगल में व्हाट आई विल डू,
angle 2 plus x plus angle 3, this will be equals to 180 degree. angle sum property ब्रीफ में लिखा, फिर से मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी. नाउ 2 plus 3 equals to 90 degree plus this x equals 180. now x will be equals to 180 minus 90. this implies x is 90 degree. so angle AOB equals 90 degree. this is true. now we'll have a look again on this same question. मैंने क्या किया है, I have taken these two triangles, उन्हें कॉन्ग्रेंट किया, कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. सिमिलरली CPCT से ये इक्वल हो गए. नाउ क्योंकि XY और X डैश Y डैश पैरेलल है तो this angle and this angle will be co-interior. so angle 1 plus 2 plus 3 plus 4 will be 180 degree co-interior angles. अब देखो यहाँ पर 1 और 2 इक्वल है, यहाँ प्रूव किया, तो आई विल राइट दिस 1 plus 2 as angle 2 plus angle 2, जो कि क्या हो जाएगा ट्वाइस एंगल 2. 3 plus 4 को क्या लिख दूंगी, मुझे ट्राइंगल के अंदर के एंगल चाहिए इसीलिए मैंने 4 से रिप्लेस नहीं किया है. ये हो जाएगा एंगल 3 plus एंगल 3, सो ट्वाइस ऑफ एंगल 3. तो ये 2 कॉमन लेकर के वहाँ डिवाइड हो गया तो एंगल 2 plus 3 विल बी 90 डिग्री. तो अभी इस ट्राइंगल के अंदर वापस मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया इन ट्राइंगल AOB एंड वी गॉट एंगल AOB एज 90 डिग्री. आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है. This is important question from examination point of view and very easy to attempt also. So next question number 10. 10th question. Prove that angle between two tangents drawn from an external point. जितना दे रखा है अभी मैं सिर्फ उतना फिगर बना रही हूँ. We are given a circle. एक सर्कल गिवन है हमें. Tangents drawn from an external point. Tangents draw की. Prove that tangent angle between tangents drawn from external point, यानी कि एक तो इस एंगल की बात हो रही है तो आई विल नेम इट एज 1. अभी मुझे नहीं पता है क्या प्रूव करना है. प्रूव दैट दिस एंगल between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary. supplementary मतलब 180 डिग्री फॉर्म कर रहा है. supplementary to the angle subtended by line segments joining the point of contact at center. एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट होता है जहां पर टेंजेंट सर्कल में मीट करती है. अब वो लाइन सेगमेंट्स जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर पे मीट करा रही हैं उनके बीच का एंगल, यानी कि वो सप्लीमेंट्री हमें किसके साथ शो करना है, एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स विच आर जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर. आई होप ये क्लियर है. तो ये मैं नेमिंग कर देती हूँ PAB एंड दिस वन एज O. ठीक है. अभी देखो आई नेम इट एज एंगल 3 एंड दिस वन एज एंगल 4. आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं मैंने इसे 90 डिग्री बनाया. अभी हमें वो चीज बतानी पड़ेगी. वी हैव टू गिव द रीजन. तो कैन आई से दैट दिस एंगल 3 इक्वल्स 90 डिग्री as well as angle 4 is 90 degree. Why? Because the radius is perpendicular to the tangent. तो ये हो जाएंगे अपने पास 90 each, क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है. राइट. नाउ एंगल 1 plus 2 plus 3 plus 4 is equals to 360 degree. What will be the reason? Angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी होगी. तो ये क्या है 1 plus 2 plus this will be 90 plus 90 this will be 360. तो एंगल 1 plus 2 क्या हो जाएगा 360 minus 180 डिग्री. सो दिस विल बी 180, यानी कि 1 plus 2 का सम क्या आ गया 180. दिस मीन्स दैट दिस एंगल 1 is supplementary to the angle 2. सेकेंड पॉइंट जो मैं इसमें मेंशन करना चाह रही हूँ, ये जो मैंने रीजन लिखा है यहाँ पर, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये रीजंस लिखने मस्ट है. यू हैव टू राइट दिस
रीजन, आपको ये रीजन लिखने ही पड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज इस पॉइंट पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं। ठीक है, लेट अस प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया 8 क्वेश्चन के साथ में। सो आई विल बी टेकिंग क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। क्वेश्चन नंबर 12, most important question of this chapter. Question number 12, सबसे important question. We are given a figure. मैं सबसे पहले figure I draw. ठीक है, ये हमें फिगर गिवन है, ए बी गिवन है, राइट, और हमें यहाँ पर गिवन है डी पॉइंट, और ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें गिवन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो चीज भी पढ़ेंगे वो हम मेंशन करते जाएंगे उसमें क्या क्या गिवन है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. एक ट्राइंगल को इस तरीके से ड्रॉ किया कि उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो जाए। सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर्स 4 सेंटीमीटर्स, यानी कि इसका पहली चीज वी आर गिवन दैट रेडियस इज 4 सेंटीमीटर्स। पहला पॉइंट तो यही गिवन है, राइट? Such that the segments BD and DC, which BC is divided by point of contact D are of length 8 and 6, और हमें इसकी लेंथ हमें क्या दे रखी है 8 and 6। You have to find the sides AB and AC, यानी कि अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है, to find AB and AC। अब मुझे ये दोनों गिवन है, मुझे ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दिस इज द सेंटर O ऑफ द सर्कल, आई विल जॉइन ट्राइंगल वर्टिसेस विद द सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एंड इट इज द सेंटर O, सेंटर इज O। दूसरी चीज इसमें और क्या मुझे ड्रॉ करना है, दैट this radius is perpendicular to the tangent at point of contact। ये perpendicular है, similarly ये भी perpendicular है आपके पास, similarly ये भी perpendicular है, right? ये तीनों perpendicular है और ये सब कहाँ मीट कर रहे हैं, सेंटर पर, सेंटर इज O। अब देखो स्टार्ट करते हैं, this will be E and this will be FC। ठीक है, assume कर लिया हम लोगों ने खुद से। just see this CD equals CF, ये CD और CF इक्वल होंगे, क्यों? टेंजेंट्स drawn from external point to circle are equal। तो यहाँ पर I'll write CD equals FC which is equals to 6 centimeter। Also DB equals BE जो कि क्या हो जाएंगे वापस 8 सेंटीमीटर, यानी कि मुझे ये पता लग गया कि दिस लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑफ 6 सेंटीमीटर्स, राइट? हमें ये लेंथ पता लग गई। अब देखो इसके बाद ये और ये फाइंड करनी है। अगर ये और ये आ जाए, पहली चीज तो ये इक्वल होंगे क्योंकि ये भी टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है सर्कल के ऊपर फ्रॉम पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो अगर मुझे ये पता लग गया तो ऑब्वियसली आई विल गेट AC एंड AB साइड। ठीक है, तो लेट AF equals AE, AF equals AE, और मैं इसे क्या एज्यूम कर लूंगी, I'll assume it as X। तो मैंने इसको भी X बोल दिया और मैंने इसे भी X बोल दिया। आई होप ये क्लियर है अभी तक। ठीक है, ये हम लोगों ने X बोल दिया और इन सब का रीजन हम लोग एक साथ लिख रहे हैं, टेंजेंट्स drawn from external point to circle are equal।
ठीक है, आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, तो x आ जाएगा। और वो जो एरिया फाइंड करना है दो तरीके से करना है, हीरोन्स फॉर्मूला से करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 9th में स्टडी किया है, अभी एक ब्रीफ यहाँ पर भी मिल जाएगा। हीरोन्स फॉर्मूला से हम लोग उसका एरिया इवेल्युएट करेंगे, प्लस हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब हमें परपेंडिकुलर गिवन होता है तो हम लोग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई करते हैं, राइट। तो सबसे पहले आई विल टेक हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां से सबसे पहले साइड AB क्या आ गई मेरे पास, देखो AB साइड हो गई मेरे पास x+8, AC साइड हो गई मेरे पास x+6, और BC साइड मेरे पास क्या हो गई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अभी अपने पास। अभी हम लोग तीनों ट्राइंगल्स की साइड लिखी है बाय हीरोन्स फॉर्मूला, बाय हीरोन्स फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते थे, यानी कि सम ऑफ ऑल द साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि x+8 प्लस x+6 प्लस 14 बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 28 बाय 2, कॉमन ले लिया मैंने 2, तो दिस विल बी x+14। ये आ गई s की वैल्यू। नाउ एरिया कैसे इवेल्युएट होता था, मैं यहाँ पे मार्जिन क्रिएट कर रही हूँ। एरिया होता था स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यही होता था, याद आया, ये हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास में, हम लोगों ने चैप्टर स्टडी किया है। सी स्क्वायर रूट ऑफ s क्या है अपने पास x+14। नाउ s माइनस a, s इज x+14 माइनस a क्या है x+8। अब यहाँ पर ये गलती होती है, सब लोग इसे इस तरीके से लिख देते हैं, बट मेक श्योर कि यहाँ पर s माइनस a है। अगर यहाँ बाहर a के आगे नेगेटिव साइन है तो अंदर का साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। दिस विल बी s माइनस b, दिस इज s माइनस b, यहाँ आ जाएगा x-6 और हो जाएगा s माइनस c, तो x+14 माइनस 14। आई होप ये क्लियर है। अभी देखो इन्हें सॉल्व करते हैं। इसी के अंदर प्लस x माइनस x कैंसिल, अगेन प्लस x माइनस x कैंसिल, और ये +14 माइनस 14 कैंसिल। तो यहाँ क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट ऑफ x+14, दिस विल बी 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, और यहाँ पे क्या आ गया x। अब मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं करूंगी, एरिया ये आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी आई एम गोइंग टू इवेल्युएट द एरिया बाय अनदर मेथड। आई थिंक आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस हियर, आई विल ट्राई टू फिनिश इट अप इन द गिवन स्पेस। ठीक है, अभी देखो आई एम इवेल्युएटिंग द एरिया बाय अनदर मेथड ऑल्सो। एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर कैसे लेना है, एरिया ऑफ AOB, यानी कि मैं सिर्फ एक ट्राइंगल को शेड कर रही हूँ सो दैट आप बाकी के दो ट्राइंगल्स विजुअलाइज कर सके। AOB, चलो इसे भी कर देते हैं, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स प्लस एरिया ऑफ COB प्लस एरिया ऑफ AOC। यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। ठीक है, और एरिया कैसे फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस क्या है, इस ट्राइंगल में देखूंगी बेस ये हो जाएगा x+8, और हाइट क्या है बेटा, रेडियस इसका हाइट है। इस ट्राइंगल में रेडियस परपेंडिकुलर बना रहे हैं इस साइड पे, राइट, तो रेडियस इसका हाइट हो जाएगा हाफ। बेस क्या है x+8, हाइट इज 4, है ना, रेडियस इज 4 बिकॉज।
फिर ये हाफ, यहाँ पर बेस इज 14 इंटू हाइट इज 4 अगेन, तो हाफ बेस कितना है यहाँ पर x प्लस 6 इंटू हाइट इज अगेन 4। तो यहीं पर ही सॉल्व करते हैं इसे, ये आ गया कैंसिल हो गया 2, यहाँ पे ये कैंसिल होकर आ गया 2, यहाँ कैंसिल होकर आ गया 2। तो मैं क्या करूंगी, मैं 2 कॉमन ले लूंगी, 2 कॉमन लिए, यहाँ बच गया x प्लस 8 प्लस 14 प्लस x प्लस 6, ये आ गया 2x प्लस 28। अभी भी मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो आई टेक 4x प्लस 14 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ये भी एरिया आ गया और ये भी मेरे पास क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, ये भी एरिया आ गया, ये भी एरिया है। अब दोनों जो एरियाज हैं वो सेम ही ट्राइंगल के। अभी देखो, अभी तक एक बार रिपीट कर देती हूँ, ब्रीफ देती हूँ कि क्या किया है मैंने सबसे पहले ये इसे और इसे x एज्यूम किया। अब दोनों ही x कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स है वो इक्वल होंगे, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्या किया, मैंने इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकाला फर्स्ट ऑफ ऑल बाय हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2, सेमी पेरीमीटर निकालना, देन एरिया विल बी स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो मैंने यहाँ से एरिया इवैल्यूएट किया। फिर उसके बाद मैंने एरिया दूसरे मेथड से निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, बट रेडियस हेयर एक्ट्स एज हाइट, रेडियस हाइट की तरह एक्ट करता है। तो दिस इज द बेस, दिस इज हाइट, यहाँ ये बेस है, ये हाइट है, इस ट्राइंगल में ये बेस, ये हाइट। तो इन तीनों को ऐड करने से मेरा ये आ गया। अब ये जो एरियाज है सेमी ट्राइंगल के, दोनों एरियाज ट्राइंगल एबीसी के, यानी कि दोनों इक्वल भी होंगे। अब इस पॉइंट पर क्या होता है, इस पॉइंट पर बहुत से बच्चे यहाँ तक करके छोड़ देते हैं और वो स्टक हो जाते हैं आगे की कैलकुलेशन में। अब ये हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है। वाई, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, मल्टीप्लाई मत करना, मैक्सिमम चीजें कॉमन लेना। तो मैं इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं इसे एज्यूम कर लूंगी इक्वेशन 2। ठीक है, करेक्ट। चलो, बाय 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में इतना कंजस्टेड लिख रही हूँ बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस। तो ये दोनों के दोनों एरियाज है, इसे इक्वल रखेंगे, x प्लस 14, चलो 6 इंटू 8 को 48 बना देते हैं, x, दिस इज इक्वल्स टू 4x प्लस 14। मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, मैंने बोला जितना कॉमन ले सकते हो लेना है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, x प्लस 14 इंटू 48 इंटू एक्स, इसका भी स्क्वायर कर दो, इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स प्लस 14, इसका भी स्क्वायर कर दो। अब एक अगली गलती यहाँ होती है कि सिर्फ इसी पर ही स्क्वायर लगा देते हैं, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर ही करना भूल जाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी। अब ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया, दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस 14 इंटू 48 इंटू एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर क्या होता है 16, एक्स प्लस 14 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी x प्लस 14, यहाँ भी x प्लस 14, तो एक x प्लस 14 विल गेट कैंसिल, 16 ones are 16 threes are 48, so this will be 3x which is equals to x plus 14, right? तो यहाँ से ये x अगर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 2x is 14, तो x is 7 है। अब हमें सिर्फ तीनों साइड्स इवेल्युएट करनी थी, so all the three sides are AB और AC फाइंड करनी है ना। AB क्या है अपने पास, x प्लस 8, जो कि क्या आ जाएगा 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर्स, एंड AC क्या था x प्लस 6, यानी कि 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, और ये हमें साइड 14 सेंटीमीटर दे ही रखी है। अब इसका कैलकुलेशन में आई एम रिपीटिंग अगेन कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है कि हमें मल्टीप्लाई नहीं करते जाने कि ये x भी मल्टीप्लाई हो जाए, उससे कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स चली जाएगी, जितना कैंसिल होता है वो करना है। सो वी आर लेफ्ट विथ जस्ट अ लीनियर इक्वेशन, एक छोटी सी इक्वेशन बची है जिसे हमें सॉल्व करना है। आई होप you will take care of such small things to easier your calculation part, and I hope this chapter is clear to you. I have discussed important question in this video. In my next video I'll be taking few important
questions and as well as the examples, important examples of NCERT that are very important from examination point of view as well. So stay tuned for the next video. Thank you so much.